بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اسلام سلامتی، پاکیزگی، راحت اور رحمت کا مذہب ہے. مسلمان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنے، دکھ، تکلیف، غم، مسائل، مشکلات اور پریشانی کا ذریعہ نہ بنے. اور مسلمان اسے کہتے ہیں جس کو سلامتی ملے اور سلامتی بانٹے اور سلامتی تقسیم کرے، مسلمانوں سے کہتے ہیں. اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. اسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے، وہ جسم کی ہو یا دل کی ہو، وہ ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو. اسلام نے ہمیشہ صفائی کو پسند کیا ہے. میلا کچیلا، الجھی داڑھی، بکھرے بال، جسم سے بدبو اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام ظاہری صفائی کو بھی پسند فرماتا ہے، دل کی صفائی کو بھی اسلام پسند فرماتا ہے. یہ اسلام کا نظام ہے کہ ظاہری صفائی بھی ہو اور دل کی صفائی یعنی اندر کی پاکیزگی اور صفائی بھی ہو. ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہوں، پاک ہوں. یہ اسلام کا نظام ہے. اس لیے کم از کم جمعے والے دن نہانے کے فضائل، ناخن کاٹنے کے فضائل، بال ترشوانے کے فضائل، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے فضائل، باقاعدہ فضیلتیں ہیں. اس کا اجر ہے. وہ اس لیے ہے، وہ اجر اور فضیلت اس لیے ہے کہ اسلام پاکیزہ اور خوبصورت روحانی اور خوشبودار مذہب ہے. میرے آقا نے سفید لباس کو پسند فرمایا ہے. آپ محسوس کریں گے میڈیکل کا لباس سفید ہے، تولیہ سفید ہو، مریض کی بیڈ شیٹ سفید ہو، ڈاکٹر کا گون سفید ہو. کیوں؟ سفید چیز پہ داغ فوراً نظر آتا ہے اور اسلام چھوٹے سے داغ کو پسند نہیں کرتا. اور وہ چھوٹا سا داغ ظاہر کا ہو یا دل کا ہو، اندر کا ہو، اسلام کہتے ہیں نہیں. اسلام کا پسندیدہ نظام پاکیزگی، بے داغ زندگی، بے داغ لباس، بے داغ صحت، بے داغ داڑھی، بے داغ چہرہ، بے داغ جوتا. میں ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں، ہم میں سے بعض نادان لوگ گندگی کو سادگی کہتے ہیں. گندے کپڑے، گندا لباس، گندے جوتے، ہم کہتے ہیں شاید ہم سادہ ہیں. یہ سادگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے. پرانے کپڑے پہن، سو دھوئے ہوئے پہن. استری کلف کاٹن ضروری نہیں، سفید میسر نہیں، رنگدار ہو کوئی حرج نہیں. میرے آقا مدینے والے نے رنگدار لباس بھی پہنا ہے. بعض جگہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ ثابت ہے، لیکن صاف پہن. یہ اسلام ہے. اگر داڑھی رکھی ہے اس کو سنوار، اس کو کنگھا دے، اس کو بہتر کر. نہ، یہ انداز نہیں ہے کہ تیرے ظاہر کو دیکھ کے کوئی بندہ پریشان ہو کہ اگر مسلمان ہونا اس کو کہتے ہیں تو پھر میں بہتر ہوں.
ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک غیر مسلم تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی. جب اس کی بیٹی مسلمان ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو اسلام سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، حد سے زیادہ کوشش کی، اور اسلام سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسلام اور مسلمان ایمان پہ پکی رہے. ایک دفعہ ایک قافلہ گزرا، اس قافلے میں کچھ مسلمان تھے. اس بیٹی نے قریب ہی مسجد بنائی تھی. انہوں نے مسجد دیکھی تو انہوں نے مسجد پہ کہا کہ اذان دے لیں، اور اذان دینے کے بعد اس میں ہم نماز پڑھ لیں جماعت کی. تو انہوں نے اذان دی، اور اذان کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کیا جس کا لہجہ بہت سخت تھا اور آواز خوبصورت نہیں تھی، اور اس کی داڑھی، اس کا جسم میلا اور الجھا ہوا تھا. اور لڑکی نے جب مسلمان ہوئی تو اس نے اذان کی آواز سنی، وہ بے ساختہ پریشان ہوئی. اس نے کہا واہ، مسلمان آ گئے. جن اس کو غیبانہ میں نے مسلمان کو اسلام لایا ہوا ہے، آج وہ مسلمان میں چل کے دیکھوں تو صحیح مسلمان ہوتا کیسے ہے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان ہوتا کیسے ہے. اس نے جا کے دیکھا نا تو وہ ایک صاحب جو ہے کھڑے اذان دے رہے تھے، اور جس ہیبت ناک انداز سے اذان دے رہے تھے اور ان کے جسم کی صفائی ستھرائی کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، وہ پریشان ہو گئی. ایک تو آواز سن کے پریشان ہوئی، اور دوسرا اس انداز سے پریشان ہو گئی، حیرت انگیز طور پہ پریشان ہو گئی. یہ مسلمان ہے. انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے. انہوں نے کہا میں نے تو سنا ہے اسلام پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے، یہ کیسا بندہ ہے. اس چھوٹے سے آدمی کی اس تھوڑی سی بات پہ اس کا ایمان ڈول گیا، اس کا ایمان کمزور ہو گیا. ہاں، اور اس کے ایمان میں رکھنا پڑ گیا. یہودی مذہب میں ختنے ہیں اور کسی مذہب میں ختنے نہیں ہیں. اسلام کے بعد ختنے یہودی مذہب میں ہیں. اسلام کے بعد یہودی پوری دنیا میں پوری داڑھی رکھے گا. یہ میک ڈونلڈ ہے، کے ایف سی پہ اس پہ داڑھی والا ایک بندہ ہے. کون ہے؟ کیسے ہے؟ میک ڈونلڈ ہے. کون سا؟ کے ایف سی میں آپ نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، وہ یہودی ہے، اس کی وہ فوٹو اس کا ہر جگہ ہوتا ہے، اس کی داڑھی ہے. مکمل داڑھی اگر ہوگی تو سکھ کی ہوگی، پگڑی ہوگی تو سکھ کی ہوگی. اسلام کے بعد جمعے کے نام پہ صفائی، سلیقہ، غسل، نہانا، حتیٰ کہ خوشبو لگانے کے فضائل آئے اس لیے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو صفائی کی طرف، سلیقے کی طرف متوجہ کریں. اس دن مجھے ہمارا ایک ساتھی ہے، پہلے بہت ماڈرن تھا، حد سے زیادہ ماڈرن تھا، اوپر سے نیچے برگر، بڑا برگر تھا. جب تسبیح خانے کا تھوڑا سا ماحول ملا تو تسبیح خانے کے ماحول میں جو پھر اس میں وہ ملنگ بن گیا. دن کو راج فرنگی کا، رات کو راج ملنگی کا. ایک ملنگی ایک ڈاکو تھا، ملنگ بن گیا. میں نے وہ دیکھا، یہ کیا تیری شکل ہے؟ تسبیح خانہ تو ملنگوں کی مینوفیکچرنگ تو نہیں کرتا. تسبیح خانہ مسلمان صاف ستھرا سادہ ہو، کپڑے پرانے ہوں، پیمند لگے ہوں، کیا حرج ہے؟ سفید ہوں بہتر ہے، رنگدار ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن تسبیح خانہ تو کسی اور انداز کو لے کے چل رہا ہے. یہ کیا تیرا انداز ہے؟
حتیٰ کہ میں نے ایک حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی آبیتی میں پڑھا، اپنے حضرت شیخ الحدیث کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو کتنی عمر تک زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دی. بڑوں کی بات میں عجیب چیز ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دی. کہیں یہ چھوٹا سا بچہ 17 18 16 سال کا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں بزرگ ہوں. بس فرمایا چھوٹے بال رکھو لیکن صاف ستھرے رکھو. پگڑی باندھنے کی اجازت بیٹے کو نہیں دی. پگڑی تو سنت ہے لیکن یہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں بوڑھا پگڑی بہنے کیفیت اور ہوتی ہے، اور جوان پگڑی بہنے تو بڑا کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. یہ کبھی باندھ کے چیک کر لینا. لگژری گاڑی ہو 4000 سی سی یا 8000 یا 5000 کوئی بھی ہو، اس میں بیٹھو اور ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھو، پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. ایک بندہ سلام کرے ٹھیک ہے، اور بہت سے سلام کریں تو اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کا اخلاص ختم اور انسان کے اندر ایک چیز زندہ ہو جاتی ہے. وہ چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کے سوا ہوتا ہے کہ بس میں کچھ ہوں، اتنے لوگ میری طرف متوجہ ہیں. صفائی سلیقہ اپنی زندگی میں ہمارا مزاج کا حصہ بنے، ہماری طبیعت میں بنے. میں ترکی میں تھا تو حضرت نون کا مزار تھا، نبی ہے غالباً وہی تھا. تو میں نے ٹشو لیا، ناک صاف کیا، اب ادھر دیکھا ڈسٹ بن نظر نہ آئی مجھے. میں نے کہاں پھینکوں؟ میرے ساتھ کراچی کے ایک صاحب ہیں، ترکی کے ہیں، اور ترک جو سکول ہے نا پاکستان میں، ترک سکول، پاک ترک سکول، وہ اس کے انچارج ہیں. وہ ہمارے ساتھ سفر میں ہی ساتھ گئے تھے، ٹرانسلیٹر ساتھ ہی آئے تھے. اچھا میں ادھر دیکھا مجھے کہیں سے کچھ نظر نہ آیا. میں نے ایک کونے میں جا کے ٹشو ڈالا. اس نے یہ دیکھ لیا، گیا چپ کر کے وہ ٹشو کو اٹھایا، کہیں دور ڈسٹ بن پڑی تھی اس میں ڈال کے آیا، اور مجھے یقیناً شرمندگی ہوئی. میں نے تلاش کی ڈسٹ بن. اچھا وہاں کے ماحول کا حصہ دیکھیں. ہمارے ساتھ 2 حضرات تھے، ایک حضرت لدھیانوی کا بیٹا تھا، مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک اور وہ منہ میں کوئی پان سپاری رکھتے تھے، ہر وقت تھوکتے تھے. انہوں نے کیا کیا، ڈسپوزیبل گلاس کے اندر ٹشو ٹھونس کے وہ ہاتھ میں رکھ لیا. ماحول کا اثر دیکھیں کہ اب یہاں جگہ جگہ تھوک نہیں سکتے، اب اس ڈسپوزیبل گلاس میں ٹشو، اور وہ اس میں تھوکا اور ہاتھ میں رکھا. جہاں ڈسٹ بن دیکھا وہاں وہ بھر گیا تو ڈال دیا، پھر نیا ڈسپوزیبل گلاس اور نیا ٹشو. اسلام بہت صفائی کا مذہب ہے، سادگی اور صفائی، جس کو دوسرے لفظوں میں سادگی اور کشادگی. سادگی اور سادگی میں بڑی برکت ہے، لیکن صفائی سلیقہ. جمعے کا دن جہاں برکتوں اور قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ قیامت جمعے کے دن ہوگی، اور جمعے کا دن جہاں اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کے تعلق کو متوجہ کرتا ہے. جمعے کا دن وہاں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن صفائی اور سلیقے کو پسند فرمایا اور اس کے لیے ترغیب کے طور پہ فضائل فرمایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. اور جمعے کے لیے صفائی کرنے اور ناخن کاٹنے اور غیر ضروری بال صاف کرنے اور اپنے جسم کے بالوں کو تراشنے اور سلیقہ دینے، اس کے یہ کمالات ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ برکات ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی میں
साफ सुथरा मिजाज आ जाए, हमारी जिंदगी में पाकीज़ा मिजाज हो और हमारा जिस्म और हमारी जिंदगी पाकीज़गी की तरफ माइल हो, पाकीज़गी की तरफ। जुमा जो है, जुमे का एक माना जमा होने से भी है, बाज़ किताबों में है, इसके कई माने हैं। एक माना जमा होने से, जहां बहुत से मुसलमान किसी मकसद के लिए जमा हो, बेमकसद जमा ना हो, उसमें इंसानियत की खैर खाही है। पहली खैर खाही यह है कि फलां बंदा जुमे में नहीं आया, खैरियत तो है, कोई मजबूरी तो नहीं, कोई आरसा तो नहीं, फलां बंदा नहीं आया, इंसानियत की खैर खाही। दूसरा, जुमे से मुराद एक ही साफ में बादशाह भी, बड़े भी। पहले दौर में बादशाह मस्जिद में आके जुमा पढ़ता था, बाकी नमाजों में बादशाह की मस्जिद अपनी होती थी। जैसे शाही किले के अंदर मोटी मस्जिद है, बादशाह की मस्जिद थी, लेकिन बादशाह शाही किले से निकल के बादशाही मस्जिद में, शाही मस्जिद में जो सामने है, वहां जुमा पढ़ा रहा था। और बाज में तो यहां तक आया कि मुसलमान बादशाह खुद जुमा पढ़ाते थे, खुद खुतबा देते थे। क्यों? कि उनके ईमान की सतह बहुत ऊंची थी, खुद जुमा पढ़ाते थे, खुद खुतबा देते थे। जुमे की इबादत का मतलूब मुसलमानों को एक जगह जमा करना, एक दूसरे की खैरियत, हाल अहवाल, एक दूसरे की तबीयत, उसका मिजाज, और फिर जहां बहुत से मुसलमान जमा हों, बहुत सी तबीयतें जमा हों, मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ तबीयतें जब जमा हों, वहां मिजाजों में टकराव एक मामूल की बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। मिजाजों में टकराव एक मामूल की बात है, हो जाती है। वहां एक बर्दाश्त का और हिल्म का सबक दिया जाता है, बर्दाश्त का और हिल्म का सबक दिया जाता है। कि बर्दाश्त और हिल्म किसे कहते हैं? इदफा बिल्लती हिया अहसन, कि बस उनको, उनकी तबीयत, उनके मिजाज में उनको माफ करना। टकराव पैदा होता है मुख्तलिफ तबीयतों में, मुख्तलिफ मिजाजों में। जुमे का यह मकसद है कि माशरे में अमन हो, रवादारी हो, माशरे में एक दूसरे के मिजाजों को साथ लेके चलना हो, और माशरे में तबीयतों का टकराव है भी तो टकराव के साथ चलना आ जाए, टकराव के बावजूद चलना आ जाए, टकराव के बावजूद चलना आ जाए, टकराव के बावजूद चलना आ जाए। मुआशरे में ये चीज लाना भी जुमे का हिस्सा है और जुमे का मकसद है, जुमे का हिस्सा है, जुमे का मकसद है। और फिर जुमे की नमाज में फरिश्तों का नज़ूल बहुत होता है। वह जो जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, फरिश्ते उन लोगों की जियारत के लिए मुतवज्जे होते हैं। जो जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, फरिश्ते उन लोगों की जियारत की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उनकी जियारत के लिए आते हैं। जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं और उनसे मुसाफा करते हैं और उनकी जियारत करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह पाक ने जुमे का वक्त रखा ऐसे है कि ऐन तिजारत के उरूज का वक्त होता है, दोपहर का वक्त गाहक निकलता है। जुमे का वक्त ऐसे रखा है, इसलिए फरमा दिया जब जुमा पढ़ लो फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर कोई बात नहीं, फैल जाओ, अल्लाह के फजल को तलाश करो, जमीन में फैल जाओ, कोई हर्ज नहीं, फिर फैल जाओ, लेकिन उससे पहले हमारे पास आ जाओ, उससे पहले हमारे पास आ जाओ। इसलिए आपने महसूस किया जुमे की 2 रकअतें हैं, ज़ुहर की 4 रकअतें हैं, जुमे की 2 हैं। इसलिए है
अल्लाह का निजाम देखे, अल्लाह पाक ने हमारे लिए सहूलतें पैदा की हैं। दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। मेरे रब ने हमारे लिए सहूलतें पैदा की हैं। इसलिए जुमे की 2 रकातें रखी हैं, 4 नहीं रखी हैं। और जुमे का अगला मकसद सुने, जुमे का अगला मकसद, पहले दौर में लोग अपने घरों में मुसल्ले बनाते थे, और अपने घर में मुसल्ला बनाना बहुत मुबारक अमल है। अपने घर में मुसल्ला बनाना बहुत मुबारक अमल है। पहले दौर में लोग अपने घर में मुसल्ला बनाते थे। अच्छा, फिर मुसल्ला क्या होता था? घर का एक कोना, एक हिस्सा उस चीज के लिए मखसूस कर देते थे कि हम इसमें तस्बीह, नमाज, इबादत करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। अच्छा, वो लोग फिर 8 दिन के बाद, अच्छा वहां उनकी अपनी जमात होती थी, जमात कराते थे और जमात से नमाज पढ़ते थे। वही लोग 8 दिन के बाद उन लोगों को जुमे के नाम पे घर से निकलने पे मजबूर करना, मुआशरे में लाके मुआशरे के हालात से आगाही देना, जिसको दूसरे लफ्जों में बाज लोग कहते हैं कि एयर कंडीशन में बैठ के जो फैसले होते हैं वो लोगों के दरमियान घुल मिल के रहने में जो लोगों के मसाइल होते हैं वो फैसले गलत होते हैं, अक्सर इसलिए कि लोगों के मसाइल तो कुछ और होते हैं। जिनको एयर कंडीशन, जिनको टफ टाइल और जिनको बेहतरीन सेवरेज और स्ट्रीट लाइट का निजाम मयसर ही नहीं है, उनकी जिंदगी का निजाम तो कुछ और होता है। उन लोगों को घर से लाना और आके मुआशरे के बीच में रखना, मुआशरे के बीच में, कि मुआशरे के मसाइल तो कुछ और हैं। जुमे में गरीब भी आएगा, लूला लंगड़ा भी आएगा, मरीज बीमार भी आएगा, तंगदस्त भी आएगा, मालदार भी आएगा। अपनी कैफियत के एतबार से उनका इजहार होता है कि जुमे में हर तबका जिंदगी के लोग आएंगे और उन तबकात जिंदगी के लोगों को के हालात उस वक्त नजर आएंगे जब उनसे हमारी मुलाकात होगी। हम उनसे दूर रहें, अपने घर के अंदर रहें और वो घर के बाहर रहें। एक रिसर्च है कि जो लोग विंडो लाइफ गुजारते हैं, उन्होंने लफ्ज विंडो लाइफ लिखा, वो या जल्दी मर जाते हैं या स्ट्रेस टेंशन में या मुआशरे से कट जाते हैं। विंडो लाइफ, विंडो लाइफ ये है, रियाया विंडो के इस तरफ है, मैं विंडो के इस तरफ, अफसर, बहुत बड़ी पोस्ट, और रियाया छोटे जरूरतमंदों की लाइन लगी है और मैं विंडो के अंदर एक बेहतरीन जिंदगी के पुरसकून बैठा हूं। उन्हें पानी, हवा, खाना, बारिश, तूफान, धूप, गर्मी, सर्दी वो उनका मसला है। ऐसे लोग जब रिटायर्ड होते हैं और मुआशरे का सामना करते हैं तो उनकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जिसको माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है, इंसानियत की लाखों करोड़ों इंसानियत पे तजर्बे कर करके वो जल्दी मर जाते हैं या टेंशन, स्ट्रेस या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला फिर मुआशरे से कट जाते हैं। जुमे का मकसद छोटों और बड़ों को, गरीब और फकीर को, अमीर और मालदार को, तंगदस्त को, या ऐसा लोग जो सखी और माल फराग है उसका हाथ, उनको इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद उनके हालात से एक दूसरे को आगाही देना है। जुमे से मुराद यह है। ये जो मुआशरा है ये अफराद से बनता है, फर्द से नहीं बनता, अफराद से बनता है। फर्द मुआशरे का हिस्सा होता है। मुआशरा जब अफराद से बनता है तो अफराद की जिंदगी के मसाइल और मुश्किलात, जिंदगी की परेशानियां और जिंदगी की दुख और ये सारी चीजें इस मुआशरे का हिस्सा होते हैं। इनसे आगाही इस्लाम का हिस्सा है। मुसलमान कभी इनफरादी जिंदगी नहीं गुजारता, मुसलमान हमेशा इज्तिमाई जिंदगी गुजारता है और इज्तिमाई जिंदगी में लोगों के मामलात से आगाही,
गरीब, फकीर, मालदार, तंगदस्त। और फिर इज्तिमाई जिंदगी में जुमे के नाम पे उसे हालात से आगाही होती है। जुमे के बाद दो बंदे बैठे, उसने कहा जी फलां बात यूं हुई है, फलां माशरे में ये बात हुई है, फलां जगह नुकसान हुआ, फलां जगह नफा हुआ, फलां, अच्छा मुझे तो खबर नहीं थी। जो घर के अंदर की जिंदगी से घर से बाहर जुमे के लिए निकलेगा, उसे एक आगाही होती है, लोगों के हालात से भी, मुआशरे के हालात से भी। उसे अल्लाह की तरफ रुजू भी नसीब होता है, लोगों की मदद में भी लग जाता है। और अगर मालदार है, अगर मालदार नहीं तो लोगों के लिए दुआओं में लग जाता है, अल्लाह इनकी मदद फरमा, अल्लाह इनकी जरूरतें पूरी फरमा। मौला मैंने फलां बंदे को दुखी दुखियारा, गमजदा परेशान देखा था, अल्लाह उसके दुख और गम को दूर कर दे। अगर उसके हालात इस काबिल होते हैं तो लोगों की मुश्किलात और मसाइल के हल करने में फौरन वो तवज्जो हो जाता है। अगर उसका साथ उसके हालात नहीं देते तो वो दुआओं में उनके लिए दिल के गम और दिल की कुढ़न और अंदर की सोज में लग जाता है। ये जुमा है। जुमा सिर्फ इबादत नहीं, इबादत तो बहुत ही ऊंचा अमल है और है। जुमे से मतलूब इस्लाम का निजाम कुछ और भी है। जुमे का मकसद इस्लाम का निजाम कुछ और भी है। मेरी तरफ तवज्जो करें, ऊँगने का वक्त नहीं है भाई। जुमे का मकसद का निजाम और भी है। वो ये मैंने जो थोड़ा सा रुख आपकी खिदमत में अर्ज किया है, थोड़ा सा अक्स जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, इंसानियत के दुख, इंसानियत के दर्द, इंसानियत का गम। अगला सुने मकसद। पहले दौर में जुमे की नमाज के बाद नसरानी यहूदी यानी ईसाई यहूदी गैर मजहब दूसरे मजहब वाले वो जुमे की मस्जिद के बाहर होते थे। मस्जिद के मुसलमानों के इज्तिमा में बादशाह भी होता था, छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे। किसी मुसलमान ने उनके ऊपर जुल्म किया है या वो किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला है तो उनको मिलना आसान होता था। सबको पता था बादशाह अल-तमिश, बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गयासुद्दीन बलबन, ये फलां मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। 85 साल की उम्र थी औरंगजेब आलमगीर की, 85 साल की उम्र थी। रोजाना 11 बजे से लेकर सुबह से लेकर जोहर की नमाज तक लाठी टेक के 50 साल इक़्तिदार था। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इक़्तिदार के दिन कितने हैं? 50 साल। 50 साल उसने इक़्तिदार किया है। लाठी टेक के लोगों की फरियादें सुनता था और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद वो शख्स मखलूक खुदा की और खास तौर पे गैर मुस्लिमों की फरियादें सुनता था। एक बात आई तो वाकया भी याद एक सुना दूं, आपको काम देगा। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रात के 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा आराम के लिए, एक हिस्सा अपनी रियाया की खिदमत के लिए। एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा आराम के लिए और एक हिस्सा अपनी रियाया की खिदमत के लिए। एक रात ये अपनी रियाया की खिदमत के लिए बाहर निकला। सर्दी थी और बारिश हुई, लेकिन ये बाहर सफर कर रहा था लोगों की। एक हिंदू था, उसकी छत टपक रही थी और वो आवाज दे रहा था कि है कोई जो मेरी छत के ऊपर मिट्टी डाल दे और मैं उसको मजदूरी दूंगा। इस दौरान उसने देखा कि एक बंदा है मजदूरों की शक्ल में, हुलिये। उसने कहा हाँ भाई मजदूर तो करेगा? उसने कहा हाँ करूंगा। उसने कहा चा जल्दी कर, ये मिट्टी उठा, ये थाल है, मेरी छत टपक रही है। खुद कमरे के अंदर था, ये बारिश में भीगा हुआ शख्स है और रियाया की खिदमत में है। इसने मिट्टी उठाई, ऊपर गया, उसके छत की मिट्टी को वहां दबाया रखा और उसके बाद मिट्टी पानी आना बंद हो गया। उसने कहा, इसने कहा जी मेरी मजदूरी। उसने कहा मैं बनिया हूं, बहुत बड़ा मालदार हूं, फलां जगह मेरी दुकान है, इस वक्त मेरा माल तिजोरी में पड़ा हुआ है, बंद है, रात का वक्त है, अचानक बारिश हुई है, तो ऐसा कर उस वक्त आ जाना, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। उसने कहा जी जो देना है यही दे दे, मैं फिर नहीं आ सकूंगा, मैं तो मजदूर आदमी हूं। उसने कहा नहीं तू फिर आना। इसने कहा जो देना है दे दे मुझे। अच्छा उसने कहा ये ले, ये 2 आने हैं, बस इस वक्त यही है। उसने कहा बहुत है, ये 2 आने जो है तू ले जा।
औरंगजेब 2 आने लेके आ गया, उससे रख दिए। रमजानुल मुबारक में औरंगजेब के मुर्शिद रमजान गुजारने के लिए उन्हें बुलाते थे। औरंगजेब के मुर्शिद औरंगजेब के पास आके रमजान गुजारते थे। पूरा रमजान औरंगजेब के पास गुजारते, अमाल में लगे रहते। जब जाने लगते तो रमजान औरंगजेब कुछ हदिया दे के उन्हें भेज देता। औरंगजेब आलमगीर कोई हदिया दे के उन्हें भेज देता। इस दफा औरंगजेब आलमगीर ने वो 2 आने दिए और वो 2 आने उन्हें दे दिए। 2 आने उन्हें दे दिए। उन्होंने ले लिए हदिया। हदिया लेके 2 माल याद रखिएगा, उसमें बहुत बरकत होती है। एक गनीमत का माल, मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखा है, एक गनीमत का माल जिसमें तमा इशराफ नफ्स न हो। ये जिहाद इसलिए नहीं कर रहा कि काफरों से लूट मार करूंगा, एक गनीमत का माल। और एक हदिये का वो माल जिसमें तमा ना हो, गरज ना हो। बगैर तमे और गरज के अचानक किसी मुसलमान से हदिया मिल जाए, उसमें बड़ी बरकत होती है। 2 माल ऐसे हैं, उसमें बड़ी बरकत है। एक गनीमत का माल जिसमें हिफ्स ना हो, एक हदिये का माल जिसमें तमा ना हो। मुर्शिद को 2 आने दिए, बहुत माल था। 2 आने लेके मुर्शिद चले गए। मुर्शिद हर साल आते थे। कोई 2-3 साल के बाद 2-3 साल के बाद जो हालात का अमीर था शहर का, वो रोजनामचा लेके आया कि जी आपके मुर्शिद पे टैक्स बनता है। मेरे मुर्शिद पे, वो तो फकीर दुर्वेश आदमी है, उन पे टैक्स कैसे? उन्होंने कहा तो इतला गलत है, फिर इस्लाह कर। उसने कहा जी ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर आया, उसने कहा जी उनका माल इतना ज्यादा है कि उन पे टैक्स बनता है, हुक्म फरमाए उन पे टैक्स लगाए। उसने कहा मुझे खबर लेने दे। मुर्शिद के पास कासिद भेजा, क्योंकि मुर्शिद तो साल के बाद तशरीफ लाते थे रोजा रखने के लिए इनकी दावत पे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मुसलमान बादशाह थे, नेक बादशाह थे। तो मुर्शिद ने उनको अर्ज किया कि मुझे मेरे हालात हाजरा का जो मामूर अमीर है उसने आप पे टैक्स देखा है, ये क्या हकीकत है? उन्होंने लिखा हाँ हकीकत है। और इसकी हकीकत यह है, अब अगली अनोखी बात सुने, मैं बिल्कुल तंगदस्त इंसान हूं। आज तक मैंने माल जमा करने की ना कोशिश की है, बस मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की है जिससे मेरी जिंदगी का गुजारा हो जाए। हुआ ये कि जो आपने मुझे 2 आने दिए थे, उन 2 आनों की मैंने एक बकरी ले ली। हाँ, कसरत और बरकत। उन 2 आनों की मैंने एक बकरी ले ली। उस बकरी में रब ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मेरे रेवड़ के रेवड़ बन गए, उससे अगले रेवड़ बन गए। कानून के मुताबिक तो वाकई मुझ पे टैक्स लगता है। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। तिर्मिज़ी की रिवायत है कि मौला अपने गैब के खजाने से मुझे ऐसी मेरी किफायत कर दे। अक्फिनी बिहलालिका, हलाल से किफायत कर, अन हरामिका, हराम मुझे नहीं चाहिए, चाहे कितना ज्यादा हो, मुझे मतलूब नहीं। अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी, मैं गनी होना चाहता हूं मौला, दिल का भी गनी, तबीयत का भी गनी, जेब का भी गनी, खजाने का भी गनी, जरूरतों का भी गनी। व अगननी पे फजल का, तेरे फजल से, क्योंकि जो भी गनी हुआ है लूट मार से कभी कोई गनी नहीं हुआ। जो पैसा दूसरे की जेब से तूने माल लिया है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, और जो अल्लाह के खजानों से तेरी जेब में आया है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। व अगननी बेफज़ल का, मौला मैं अब तेरे फजल से गनी होना चाहता हूं। और गिना का ताल्लुक करोड़पति बनने से नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा।
गिना का ताल्लुक इस चीज से है कि अल्लाह मुझे तमे, गरज, हिर्स, चोरी, धोखा और फरेब से महफूज कर दे, मेरी जात से मुसलमान को राहत पहुंचे, तकलीफ न पहुंचे, और अल्लाह मेरी जरूरतों को सदा गैब से पूरा कर दे। वह अगननी बेफजल का अमन सिवाक, और अमन सिवाक ऐसा जबरदस्त चीज है जिसमें इस्लाम का निजाम गैरत है। गैरत सिर्फ इस्लाम में है, हया सिर्फ इस्लाम में है और कहीं नहीं है, सिर्फ इस्लाम में है। अमन सिवाक, और अब मुझे दर दर का सवाली ना बनाना, दर दर का भिखारी ना बनाना, ना मेरी जुबान का सवाल हो ना मेरे दिल का सवाल हो, बस मुझे अपने दर का सवाली बना। वह अगननी बेफजल का, गनी कर दे अपने फजल से, अमन सिवाक, किसी का मुझे मौला भिखारी ना बना। इस्लाम का निजाम पाकीज़गी के है, मैं अर्ज कर रहा था। और जुमे से मुराद सिर्फ इबादत नहीं, अगला मकसद जुमे का, मैं आज जुमे के कुछ मकसद बयान कर रहा हूं। जुमे से मुराद जो अर्ज कर रहा हूं, अगली सुने। इस्लाम की तारीख में यह बात शामिल है कि मस्जिदें या ऐसी जगह जहां जुमा होता है, जुमा वाहिद चीज है जिसके लिए मस्जिद की शर्त नहीं है। मुहद्दिसीन ने और फुकहा ने इसके बहुत दलाइल लिखे हैं। जहां मस्जिद जो है, मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुई। मस्जिद नबवी कैद खाना भी था, मेहमान खाना भी था। गैर मुस्लिम कैदियों को मस्जिद के सतूनों से बांध दिया जाता था, खाने के लिए, हाजत के लिए खोला जाता था। वो मुसलमानों के मामलात देखते थे, इबादत देखते थे, मुआशरत देखते थे, अखलाकियात देखते थे, और कोई एक दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कुछ कलमा पढ़ लेते थे। मस्जिदें मेरे आका के दौर में अदालतें भी थी, यहां बैठ के फैसले भी होते थे। और मस्जिदें गरीब के लिए फरियाद की जगह भी थी कि गरीब आके यहां फरियादें करता था। मस्जिद की हैसियत, मस्जिद की अहमियत इस्लाम में बहुत वसी है और बहुत जामे है। इसलिए कभी मस्जिद को ताले नहीं पड़े थे। बकौल एक अल्लाह वाले के, जितना मस्जिद में सामान ताइश, ऐश का सामान भरते जाओगे, चीजों की हिफाजत करनी पड़ेगी, फिर ताले लगाने पड़ेंगे। मस्जिद तो उस करीम का दर है जो दिन रात खुला रहता है। इसलिए काबा वाहिद मस्जिद है जो दिन रात खुली रहती है। मस्जिद नबी को ताला लग जाता है रात 11 बजे के बाद। काबा वाहिद दर है जो दिन रात खुले रहते हैं। उसमें कभी आज तक तातील नहीं है, नागा नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे आपको जुमे की सआदत दी है। इस जुमे की सआदत में अपने ईमान का जहां मैं आप इजाफा करें और ईमान को बनाने के लिए मेहनत करें। अपने जाहिर को बनाने की भी मेहनत जुमे का हिस्सा है। अपने जाहिर को, जैसे मैंने अर्ज किया, जरूरी नहीं कपड़े पोशाक बहुत महंगी हो, फटे पुराने कपड़े हो, पर साफ हो, पर साफ हो, जिस्म साफ हो, जिंदगी का निजाम सफाई और सुथराई पे हो, सफाई और सुथराई पे हो। यह भी जुमे का तकाजा है और यह भी जुमे का हिस्सा है। और जुमे की एक इबादत दरूद पाक है और एक मसनून दरूद जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। मसनून कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। एक सहाबी अर्ज हुए हाजिर खिदमत बारगाह रिसालत महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे और अपने फक्र, अपनी गुर्बत, अपनी तंगदस्ती, अपने फाके का इजहार किया। एक बात याद रखिएगा,
तारीख नबूवत में ये बात सदा से शामिल है, मेरे नबी ने किसी को थापड़ा नहीं दिया, जा तो कामयाब है, करना कराना कुछ नहीं है, थपकी दी चल जा कामयाब है ना। जो भी साइल आया उसको किसी अमल पे लगाया, हाँ, हत्ता कि यहां तक अमल पे लगाया कि तेरे घर में क्या है, जो कुछ है बेच के कुल्हाड़ा ले आ। इस्लाम ने मुसलमान को भिखारी नहीं बनाया, भिखारी नहीं बनाया, अमल पे लगाया। वो अमल सलातुल हाजत है, वो अमल मसनून अमाल मसनून दुआओं की शक्ल में है। दूसरे लफ्जों में, दूसरे मानों में, अल्लाह के बंदों को मखलूक के दरवाजे पे नहीं भेजा बल्कि खालिक के पास भेजा, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, अपनी जरूरतों को अल्लाह के सामने पेश करने वाले बन जाएं। तो सहाबी आए, अपनी तंगदस्ती का तस्करा किया, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अमाल बताए हैं जो किताबों में रिवायात में मौजूद हैं। उस वक्त में जो अमल आपने फरमाया वो आज जुमे की मुनासबत से अर्ज करता हूं। फरमाया तू पढ़ा कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये अमल पढ़ा कर, ये अमल पढ़ा कर। और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हजरत फरमाते थे इसमें आजम क्या है? फरमाया यकीन आजम इसमें आजम है। यकीन आजम क्या है? वो कहता है मुझे ऐत देवता के पास जाऊंगा, मेरी मुश्किलें टल जाएंगी जिसके नाम पे एतवार है। मंगल देवता के पास जाऊंगा, जंगल में मंगल हो जाएगा, सब्जा फल मिलेंगे, उसका यकीन है। सोम देवता के पास, सोमनाथ सोमवार देवता के पास जाऊंगा, मुझे मसले हल होंगे। संच देवता के पास जाऊंगा जिसका वजह से शनिचर है, हफ्ते का दिन है, मैं उसके पास जाऊंगा, मेरी मुश्किलात हल होंगी। बुधा के पास जाऊंगा जिसकी वजह से बुध है, बुधा देवता के पास जाऊंगा, मेरी जरूरतें पूरी होंगी, उसका यकीन है और करता अल्लाह है। हिंदू कहता है पीपल का दरख्त, शीश नाग और गाय ये मेरी जरूरतें पूरी करेगा, उसका यकीन है, करता कौन है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दरूद पाक फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये पढ़, यकीन की ताकत से पढ़ा उसने। उसको देवताओं पे यकीन है और वो पा लेता है, देता सिर्फ अल्लाह ही है। इसको यकीन अगर अल्लाह पे है तो ये पा लेता है। और उसने पढ़ा और अल्लाह ने अपने गैब के खजाने से उसकी जरूरतों को पूरा किया और कुछ ही अरसे के बाद मेरे रब ने उसे गनी कर दिया। मैंने बेशुमार दफा आपको अर्ज किया, बताया, अल्लाह के फजल से चूंकि निजाम अल्लाह ने यहां बहुत बनाया और अल्लाह ने मखलूक खुदा को आलम में इस छोटी सी टूटी फूटी जगह इंसानियत को नफा दिया और अल्लाह दे रहा। मैं तो आपको अक्सर अपने दर्श में वाज़ेह अर्ज किया करता हूं, कहता हूं कि मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं, मेरा मैसेज एक नंबर है, मेरा पैगाम एक नंबर है, उसके पीछे कुरान और सुन्नत की सनद है। इसलिए मेरा ताल्लुक यहां तस्बीह खाने के निगरान और जिम्मेदार उलमा हैं कि इन हजरात की साथ लेके चलना ही अबकरी रिसाले पे उलमा की नजर है, प्रेस में जाता है। और आईटी का शोबा है हमारा, उलमा की नजर है। और इंसानियत को अल्लाह के फजल से यहां से नफा मिल रहा, इंसानियत को अल्लाह के फजल से फायदा हो रहा। कल मेरे पास स्टोर चैनल है, उसका मालिक आया तो मुझे कहने लगा कि सुना है कि आपका जो वेबसाइट है वो बड़े बड़े चैनलों से ज्यादा है, उसकी वजह? मैंने कहा मुखलिसीन रोजे रखते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, मेहनत करते हैं,
इखलास वालों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं, और उनकी वजह से मुझ जैसे बंदे भी अल्लाह की बात बोल बैठते हैं। उसको मैंने जब IT के शोबे में ले गया भेजा, 206 मुल्कों में अल्लाह तस्बीह खाना, यहां से अल्लाह पैगाम पहुंचा रहा। वो कहता मैं हैरान हूं, और 14,500 शहर हैं, कुवैत दुबई एक शहर है, 14,500 शहर हैं, और करोड़ों 5 करोड़ के करीब सफहात हैं, और 650 जुबानें हैं IT के शोबे में, जिनके जरिए से पूरा वर्ल्ड ले रहा। हमारे यहां रमजान में यहां तकरीबन 2000 अहबाब थे, उनमें शिया भी थे, देवबंदी भी थे, बरेलवी भी थे, अहले हदीस भी थे। बाज़ औक़ात हम शियों के लिए इफ्तारी का निजाम इलाहता रखते हैं, कुछ मिनट उनका वक्फा होता है। उम्मत का हर तबका, उम्मत के हर तबके का हर मिजाज का फर्द, हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अमीर थे, उनकी खिदमत में एक शख्स आया। सुबह उसको शेव के लिए पानी देते थे, साबुन देते थे, और शेव के लिए उन हजरात को, उस मेहमान को निजाम देते थे, और सुबह खाना नाश्ता देते थे। रमजान था, खुद रोजे से होते थे। उसको नहीं कहा कि रोजा रख, और वो सारा दिन दिल्ली की सैर करता, शाम को फिर निजामुद्दीन मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो जाता, और उसके शाम का खाना इंतजार होता था, और बाज़ औक़ात वो इफ्तारी से पहले, इफ्तारी के बाद वो खाना खाता था। उसे आज तक नहीं कहा, कुछ 2 हफ्ते ही नहीं गुजरे थे, कहने लगा आपका तो रोजा होता है और मुझे आप ये खिदमत करते हैं। फरमाया हमारे यहाँ हमारे हजरत ने, हमारे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मैंने बस यही सीखा है, और शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह से यही सीखा, इकराम सीखा है, मैंने तो यही सीखा है। तो कहने लगा कि बस मैं यही कुछ सीखने आया था। असल में अंदरूनी तौर पे मैं यहूदी हूँ, और हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग का निजाम है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, हमें पूरी तरबियत दी जाती है। मैं आपके यहाँ देखने आया था, और जब मैंने आपका निजाम देखा है कि हर तबका यहाँ आता है, सारी जमातें खत्म हो सकती हैं, आपका निजाम इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि आप हर तबके को सादगी के साथ लेके चल रहे हैं, हर तबके को सादगी के साथ लेके चल रहे हैं। अल्लाह ने इस छोटी सी आवाज को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, और अल्लाह का निजाम है कि कितने करोड़ों लोग हैं जो तस्बीह खाने की IT के निजाम के साथ अल्लाह ने उनको जोड़ दिया है। अब अमेरिका से रात दोस्त आए, उनका निकाह भी था, बेटी की शादी करने आए, उनको मैं निजाम दिखा रहा था। लॉस एंजलिस में रहते हैं, 10.25 लाख अफराद हैं जो तस्बीह खाने से जुड़े हुए हैं, 10.25 लाख अफराद सिर्फ, और 97 लाख अफराद हैं पाकिस्तान के, 97 लाख जो कि तस्बीह खाने के पैगाम के साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने पेज लाइक किया हुआ है, कोई दर्स सुनता है, कोई मैगजीन पढ़ता है, कोई पोस्टों को देखता है। और इन सारी चीजों की बुनियाद 2 चीजें हैं, इंसानियत की खिदमत और ईमान की तरक्की। इन सारी चीजों में 2 चीजें हैं। हमारा एक टूटा फूटा निजाम है, इसमें हमने अपने आप को कभी अक्ल कुल नहीं कहा। 100 गलती हैं, 100 खामियां हैं। मेरी हर किताब में ये बात लिखी हुई होती है कि इसमें जो इस्लाह मिले वो आप हमें बताएं। रिसाले में ये बात मुसलसल लिखी हुई है कि जो चीज मिले हमें बताएं कि हम उसकी इस्लाह करें। मेरी हर जुमेरात के दर्स में उलमा मेरे साथ बैठे होते हैं, इसलिए बैठे होते हैं कि मेरे दर्स के दौरान अगर मुझसे कोई खता गलती हो, मैंने उम्र भर मेडिकल में पढ़ा है, कोई एजुकेशन में पढ़ा है, मुझसे खता हो सकती है। मैं आलिम हाफिज कारी नहीं हूं, अल्लाह बरकत दे उम्र में, मेरे साथ उलमा चल रहे हैं। अगर उनमें, मेरी जात में, मेरे लफ्जों में, मेरे लहजों में कोई खता हो तो मुझे इतला करते हैं, उनकी मेहरबानी है, और मैंने उनको बाकायदा ये खिदमत दी हुई है। लेकिन एक बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मसनून अमाल के जरिए इंसानियत को इस जगह से अल्लाह नफा दे रहा है। मसनून अमाल के जरिए बहुत ज्यादा।
पिछले दिनों हमारे पास 14-15 सहाफियों की टीम आई और या मकबूल जान साहब आए, उन्होंने दुआ कराई और हम उनको प्रेस में ले गए, जहां ताज कंपनी सगिया पुल में ताज कंपनी प्रेस है, वहां मैगजीन छप रहा है। वो कहने लगे कि इतनी तादाद में रिसाला अगर हम अपनी आंखों से न देखते तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं छपा। और मैगजीन में का हर सफा, हर लफ्ज मखलूक को कोई रूहानी या तिब्बी नफा दे रहा। एक पैगाम है जो अल्लाह अपने गैब के खजानों से, मौलाना फजल रहीम साहब ने बकायदा मुजीब इनकलाबी साहब की सरपरस्ती में आईटी की टीम भेजी और आके हमारी आईटी की टीम का उन्होंने बकायदा जो है वो अपना विजिट किया कि हम जिस मुल्क में जाते हैं वहां अबकरी होता है, तस्बीह खाना होता है, क्या है इसमें। फिर हमने उन्हें सारा आईटी का निजाम दिखाया कि अल्लाह के फजल से, महज अल्लाह के करम से इंसानियत को 206 मुल्क हैं, 14,500 शहर हैं, करोड़ों इंसानियत है मुख्तलिफ जुबानों में। अबकरी बयाक वक्त इंग्लिश में, तुर्की में, रूसी जबान में और बंगला जबान में, हिंदी जबान में, सिंधी जबान में ये अबकरी बाकायदा शाये हो रहा है हर महीने। आपको नेट पे ये मिलेगा। रशियन में रूसी जबान, तुर्की जबान, इंग्लिश जबान और जो है बंगला और हिंदी और सिंधी और उर्दू। अल्लाह के फजल से इंसानियत को एक पैगाम मिल रहा है और इंसानियत नफा पा रही है। उसमें हमारे लहजों की गलतियां भी हैं, हमारी लफ्जों की गलतियां भी हैं, नियतों का खोट भी हो सकता है। हमने अपने आप को कभी कामिल दावेदार नहीं है, जिसको मैंने अभी भी अर्ज किया कि मैं अक्सर अपने दर्स में अर्ज करता रहता हूं कि मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश है कि मेरा पैगाम एक नंबर हो, उसमें कुरान और सुन्नत का दखल हो। तो ये दरूद पाक जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं, नमाज का वक्त हुआ चाहता है। ये दरूद पाक जो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये मसनून दरूद है। कारोबार की मुश्किलात हों, मुआशी मुश्किलात हों, घरेलू मुश्किलात हों और खास तौर पर रोजगार की फाइनेंशियली क्राइसिस हों, जितना कसरत से इसको खुला पढ़ें, हर हालत में इसके अनोखे कमालात मिले हैं। बल्कि किताबों में इस दरूद के ऊपर लिखा हुआ होता है गनी होने के लिए दरूद पाक, गनी होने के लिए, मालदार होने के लिए दरूद पाक है ये, मालदार होने के लिए दरूद पाक है ये। जिसने मालदार होना है वो ये दरूद पाक पढ़े। यानी मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए, कारोबारी मसाइल से निकलने के लिए, रिस्क की वुसअत को पाने के लिए ये दरूद पाक है। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब एक बुजुर्ग गुजरे हैं, दारुल उलूम के मुहतमिम थे। उनके पास एक बंदा आया और शेख मौलाना ज़िक्री रहमतुल्लाह भी साथ बैठे हुए थे और आके कहने लगा कि हजरत मुझे तंगदस्ती है, बेटियों की शादी है, बेटे हैं, घर नहीं, टपकता है और घर में फक्र है, तंगदस्ती है, इस तरह के हालात। तो हजरत कारी साहब ने फरमाया ये बैठे हैं, ये पीर साहब हैं मौलाना ज़िक्रिया साहब की तरफ, इनसे बात करो। उन्होंने फरमाया तो ये मसनून दरूद पढ़ा कर, ये मसनून दरूद पढ़ा कर। हजरत कारी साहब की खास नंबर छपा, उसमें ये बात लिखी हुई है, ये मसनून दरूद पढ़ा कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये दरूद मसनून पढ़ा कर। फरमाया उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ने उसके हालात इतने बेहतर किए। एक दफा फरमाया कि दारुल उलूम के लिए कई हजार रुपए उस दौर में लाया कि हजरत इस लंगर में मेरा भी हिस्सा मिलाए। फरमाया मैं वो शख्स था जिसको हजरत कारी साहब फरमाते थे मैंने एक दफा सवा रुपया दिया था और सवा रुपया दिया था कि आने में उसके घर के खराजात नहीं थे। आज वही शख्स हजारों रुपए मेरे पास लाया हदिये के तौर पे इस दरूद पाक की बरकत से। इस दरूद में रिस्क की वुसअत के लिए, तंगदस्तियों से निकलने के लिए, मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए अल्लाह ने बहुत वुसअत रखी है। अल्लाह मुझे आपको आमाल की का कामिल यकीन अता फरमाए और मसनून आमाल के जरिए से पलने, बनने और मसाइल के हल होने का कामिल यकीन अता फरमाए। पहले दूसरी अजान होगी, बाद में सुनते पढ़िएगा, अभी दूसरी अजान नहीं हुई।
سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔